ایک بادشاہ تھا تو منصف اور عادل، پر اس میں ایک عادت بھی تھی، اسے بیٹی سے بہت نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کے اس کے ہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا۔ اسے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا، بہت ناز و نام اور لاڈا پیار سے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ چند سال بعد ملکہ پھر امی سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی لڑکا ہوا تو ٹھیک، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ چلا گیا۔ چند ہفتے بعد اس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا کیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اے ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی، پر میں یہاں سے اسے اپنے گھر میں لے جا کر پالوں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بھیجتی رہیں گی تو آپ کی بچی خوشحال اور آسودہ ہوگی، وگرنہ مجھ غریب کو جو نصیبی سے اس سے بھی پالنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے کوئی سونا چاندی زیور وغیرہ بچی کے واسطے تھما دیا، بچی کو اس کے حوالے کیا۔ محل میں یہ بات پھیلائی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے ناز و نم سے اس کی پرورش شروع کر دی۔ جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی احوال سنایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی اور آپ کے حکم کی وجہ اسے ہلاک کی گئی۔ بادشاہ اپنی بدعادتی کی باعث خوش ہوا۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے ناز و نم سے اس کی پرورش شروع کر دی۔ جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی احوال سنایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی اور آپ کے حکم کی وجہ اسے ہلاک کی گئی۔ بادشاہ اپنی بدعادتی کے باعث خوش ہوا۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کے شہزادی کو لاتی اور ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی ممتا کو کچھ قرار ملتا اور وہ دائی کو سونا چاندی اپنی بیٹی کی نگہداشت کے واسطے دے دیا کرتی۔ چونکہ شہزادی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے خوب قد کاٹ نکالی۔ خوبصورت تھی ہی، اس لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا، یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، مجھے یہ بہت پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ چونکہ حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے گئے۔ اب دائی کے اوسان خطا ہو گئے کہ یا اللہ، اب کیا کروں؟ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں ایک غریب ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب سے رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں آیا، لیکن دائی کے گھر رشتے کے لیے بہت سے بندے بھیجے۔ سب نے دائی کو بہت منت سماجت کی، لالچ دیے، تونس دھمکی دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کے خوب سزا دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے اور انہوں نے اسے خوب کوٹ کوٹ کر پیٹنا شروع کیا۔ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کے رکھ دیا۔ بیچاری پہلے سے ہی 2 ہڈیوں پر تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے، میں نے اسے ہلاک کرنے کے بجائے لے جا کر اپنے گھر میں اس کی پرورش کی ہے۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا۔ خدا نے اسے گناہ عظیم سے بچایا۔ وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں نکال کر اور گردن کا خون لا کر مجھے دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ شہزادہ پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کرے۔ اس کی آنکھیں نکال لے اور اس کی گردن کا خون لا کر باپ کو دکھا دے۔ اسے کسی صورت یہ گوارا نہ تھا، اگرچہ اسے اپنی بہن کے متعلقہ معلوم ہوا، لیکن اسے پتہ تھا کہ بادشاہ ہر صورت اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے اسے قتل نہیں کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے جا کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں جنگل پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ بہن سے کہا کہ میں کسی صورت تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا، میں تمہیں یہیں چھوڑے دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت کہ تمہیں درندے کھا جائیں یا تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ،
لیکن بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا نہیں بھائی، تم مجھے قتل کر دو، میری آنکھیں اور خون لے جا کر باپ کو دکھا دو، نہیں تو وہ تمہیں مار دے گا، جو مجھے کسی صورت گوارا نہیں۔ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ آخر کسی طرح بھائی نے بہن کو منا لیا۔ شہزادی آنسو بہاتے ہوئے گھنے جنگل کی طرف جانے لگی۔ آخری بار پلٹ کر بھائی کو دیکھا اور جنگل میں گھس گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر ایک ہرن کا شکار کیا، اس کے گردن کا خون نکالا اور آنکھیں نکال کر لے جا کر بادشاہ کو دکھا دی۔ بادشاہ نے آئینہ منگوایا، اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے تب اسے تسلی ہوئی۔ ملکہ نے کسی طور شہزادے کو بلا کر اس سے بیٹی کے متعلق پوچھا۔ شہزادے نے ماں کے سامنے سارا احوال گوش گزار کر دیا۔ ملکہ نے منہ آسمان کی طرف کر کے ہاتھ اوپر اٹھائے اور بیٹی کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ تو میری بیٹی کی حفاظت کر، اسے اپنے امان میں رکھ اور اسے کسی اچھی جگہ پار لگا۔ اب آگے شہزادی کا قصہ سے۔ شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل پھول بوٹے کھا کر اپنا وقت گزارنے لگی۔ اس دوران بہت سا وقت گزر گیا۔ جھاڑیوں کانٹوں سے الجھ کر اس کے بسیدہ کپڑے تار تار ہو گئے۔ آخرکار اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ رہا۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا۔ اتفاقاً بادشاہ اسی طرف جا نکلا جدھر شہزادی تھی۔ جب شہزادی کے کانوں میں کسی گھوڑے کے قدموں کی آہٹ پڑی تو جلدی جلدی کسی گھنے درخت پہ چڑھ گئی اور اس کے بڑے بڑے پتے توڑ کر اپنی ستر پوشی کر کے چھپ کے بیٹھ گئی۔ بادشاہ بھی آ کے اسی درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ درخت گھنا اور سایہ دار تھا۔ ایک طرف اپنے گھوڑے کو باندھا اور درخت کے سائے میں کپڑا بچھا کر تھوڑی دیر ستانے کی خاطر لیٹ گیا۔ چونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھا، اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ کسی ہیت پر پڑی۔ وہ اچکل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، تم کوئی پری ہو، فرشتہ ہو، جن ہو یا کوئی انسان، جو بھی ہو اپنے آپ کو ظاہر کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے پکار کر کہا، اے مسافر، میں ایک لاچار لڑکی ہوں، میرے جسم پر کپڑے کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے نیچے پیچھے چادر کو میری طرف پھینک دو تاکہ میں اسے ڈھانپ کر نیچے اتروں اور تم سے بات چیت کروں۔ بادشاہ نے اپنے نیچے پیچھے کپڑے کو اٹھایا، اس کا گولا سا بنا کر اس کی طرف پھینکا۔ شہزادی نے اس کپڑے سے اپنے جسم کو خوب اچھی طرح ڈھانپا اور کسی نہ کسی طریقے سے درخت سے اتر گئی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے حواس گم ہو گئے۔ اس کے پورے ملک میں کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ پورے دل و جان سے شہزادی پر فریفتہ ہو گیا۔ جٹ شہزادی سے کہا، میں ایک بادشاہ ہوں، اگر تم برا نہ مانا میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، شہزادی نے حامی بھری، وہ بھی ایک ایسا بندہ چاہتی تھی جو اسے عزت دے۔ بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک پہنچتے بادشاہ پہلے وزیر کے گھر گیا پہنچا اور اسے کہا، ایسے سمجھو کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، میں کل رشتہ مانگنے آؤں گا اور شادی بیاہ رچا کر اپنی امانت یہاں سے اپنے محل لے جاؤں گا۔ وزیر نے اداب بجا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ پوری طرح سے تسلی رکھیے، یہ آپ کی امانت ہے اور میری بیٹی، جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیے۔ بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر چھوڑ آیا۔ اگلے دن وکیل قاضی بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر آ پہنچے۔ وزیر نے رشتہ کے لیے ہاں کر دی۔ ایک دو دن بعد منگنی ہو گئی۔ بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ جلدی شادی کا نیوتا بھیجا اور شہزادی کو بیاہ کر اپنے محل لایا۔ بادشاہ اور شہزادی اپنی شادی سے بہت خوش تھے۔ اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا۔ چند سال بعد اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادی سے جو ملکہ بن گئی تھی پوچھا، اب جب کہ اللہ نے ہم دونوں کو اولاد نرینہ سے نوازا، تم اب ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو، اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو اور کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے۔ شہزادی نے کسی طریقے سے بادشاہ کو ٹال دیا۔ ماہ اور سال گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ نے دوبارہ شہزادی سے وہی سوال دہرایا۔ شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا۔ آخرکار ان کے ہاں جب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ آخرکار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ وہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ کو کس طرح بیٹی سے نفرت، اس نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا اور دائی نے مجھے کس طرح بچا کر اپنے گھر میں میری پرورش، بادشاہ نے کس طرح مجھے دیکھا پھر کس طرح اپنے بھائی کے حوالے کر کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ میں اس طرح جنگل میں خوار زندگی گزارنے لگی، وہاں تم نے مجھے دیکھا، مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے اور مجھ سے شادی کی۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بھری کہانی سنی تو اس سے کہا، اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر لے جاؤں گا۔ شہزادی نے بہت مدد کی کہ مجھے میرے ظالم باپ کے سامنے مت لے
गया, वो मुझे कत्ल कर देगा। लेकिन बादशाह नहीं माना। आखिरकार वो मजबूर होकर अपने माँ बाप के घर यानी ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। बादशाह ने पूरे जाह और जलाल और तमतराक से एक बड़े लश्कर के साथ शहजादी और तीनों बेटों को भेजा, लेकिन खुद कुछ मुल्क के जरूरी कामों की वजह से रुक गए। अपने वजीर, वकील और काजी को शहजादी के साथ कर दिया और कहा कि तुम लोग मलका को लेकर रवाना हो जाओ। मैं पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर तुम लोगों से जरूर आकर मिलूंगा। वजीर, वकील और काजी शहजादी को लेकर लाव लश्कर के साथ इसके माँ बाप के मुल्क की तरफ रवाना हो गए। शाम होते होते इन्होंने पहले मंजिल पर पहुंचकर पड़ाव डाला। खादमों ने शहजादी का खैमा इस्तादा किया। तब शहजादी ने देखा कि वजीर का खैमा भी इसके खैमे के बिल्कुल करीब खड़ा किया गया। शहजादी ने वजीर को बुलाकर उससे पूछा, ए वजीर, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी और एक बादशाह की बीवी हूँ, तुम अपना खैमा यहाँ से दूर लगवा दो। वजीर ने कहा, मलका साहिबा, बादशाह ने हमें आपकी हिफाजत की खातिर आपके साथ रवाना किया है। अगर आप या आपके बच्चों को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या जवाब दूंगा। शहजादी ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, पर तुम अपना खैमा यहाँ से दूर कहीं और लगवा दो। लेकिन वजीर नहीं माना। खैमे लग गए, खाना वगैरह खाया गया, रात हो गई थी, थके हारे लोग सो गए। वजीर के दिल में खोट था, उसे नींद नहीं आ रहा था। आखिर आधी रात को उठा और शहजादी के खैमे में दाखिल हो गया। शहजादी पहले से ही बांध चुकी थी कि बदजात की नीयत में खोट है। आहट पाकर शहजादी जाग गई। देखा कि वजीर है तो उससे ललकार कर बाहर निकलने को कहा, लेकिन वजीर आगे बढ़ने लगा। शहजादी ने कहा, ए बदजात वजीर, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी और एक बादशाह की बीवी भी, ना मैंने बुराई की है और ना किसी का बुरा चाहा है। मुझे मखलूक के सामने बदनाम मत कर और मेरे खैमे से निकल जा। लेकिन बगैरत वजीर नहीं टला। जब शहजादी ने देखा कि वजीर किसी सूरत नहीं मान रहा तो उसने अपने बड़े बेटे को वजीर के सामने किया कि तुम्हें इस बच्चे की सार की कसम इस तरह मत करो, इससे अल्लाह और रसूल के वास्ते दिए कुरान की दहाई दी। लेकिन बदकार वजीर को दिमाग चितान पूरी तरह से दर कर चुका था। वो आगे बढ़ा और तलवार निकाल कर एक ही बार से बच्चे का सर धड़ से हलाक किया। शहजादी समझ गई कि बदजात वजीर बिल्कुल भी नहीं टलेगा। उसने वजीर से कहा, तुम अब बिल्कुल भी नहीं टलोगे। मैं एक पाक औरत हूँ, इस वक्त भी मुझे इतना मौका दो कि मैं अपने को तोड़ कर आ जाती, तब तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। वजीर ने कहा, जाओ और जल्दी आ जाओ। शहजादी खैमा से बाहर निकल गई। भागती हुई वहाँ से दूर एक बड़े झाड़ी के पीछे छुप गई। वजीर कुछ देर इंतजार करने के बाद इसे ढूंढने लगा। इधर उधर तलाश करने लगा लेकिन नाकाम रहा। सुबह होने वाली थी। आखिरकार थक कर दोबारा शहजादी के घर दाखिल हो गया। बच्चे की लाश उठा कर कहीं दूर दफन किया और अपने खैमे में आकर घुस गया। सुबह बहुत देर के बाद शहजादी अपने खैमे में दाखिल हो गई। अपने मकतूल बेटे को ना पाकर रोने लगी। लश्कर दोबारा रवाना हो गया। चलते चलते शाम तक दूसरी मंजिल पर जा पहुंचे। खादमों ने शहजादी का खैमा इस्तादा करना शुरू किया। शहजादी ने देखा कि वजीर ने आज अपना खैमा बहुत दूर खड़ा करवाया है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि खदाम एक और खैमा इसके खैमे के करीब इस्तादा कर रहे हैं। पूछा, ये किसका खैमा है? खदाम ने जवाब दिया कि वकील का खैमा है। शहजादी ने वकील को बुलवाया और कहा कि औरत, तुम अपना खैमा मेरे खैमे के करीब से हटवा दो, ये अच्छी बात नहीं है। वकील ने कहा, ए मलका, बादशाह सलामत जी आपके साजो सामान की हिफाजत के लिए आपके हमरा कर दिया है और पुरजोर तकीद की है। अगर आपको या आपके सामान को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। शहजादी ने जवाबन कहा, इतने जंग गफीर के दरमियान मुझे और मेरे सामान का कोई कजाक नहीं ले जा सकेगा। बेहतर यही है कि तुम अपना खैमा कहीं दूर इस्तादा करवाओ। लेकिन बदकार वकील टस से मस ना हुआ और अपना खैमा इधर ही इस्तादा करवाया। शहजादी पहले से ही वजीर के हाथों मार खा चुकी थी, इसलिए इस रात अपनी पूरी होशोवास में थी। वैसे भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आज भी उसने आधी रात को किसी के कदमों की आहट अपने खैमे की तरफ आते सुनी तो मुकम्मल बेदार हो गई। जब उसने देखा कि आने वाला वकील है तो इससे ललकारा, खबरदार, मेरे खैमे में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ खैमे से। लेकिन वकील अपने नापाक इरादों के साथ इसकी तरफ देख रहा था। शहजादी ने दोबारा इसे कहा, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की बीवी हूँ, एक पाक दामन औरत हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ो और अपने अंजाम की फिक्र कर। लेकिन बदकिरदार वकील कहाँ टलने वाला था, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। शहजादी समझ गई कि ये बदजात भी नहीं टलने वाला। इसने अपने दूसरे बेटे को इसके सामने किया और उससे दुहाई दी कि इस मासूम के सर की कसम, मेरा पीछा छोड़ो और निकल जाए यहाँ से। लेकिन वकील ने भी तलवार से वार करके इसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा कर दिया। शहजादी ने बेचारगी से कहा, अगर तुम अपने नापाक इरादों से नहीं टलने वाला तो मुझे मौका दे, क्योंकि मैं पाक व साफ और वजू से हूँ। मुझे कुछ वक़्त दे ताकि मैं खुद को नापाक कर दूँ, इसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे करो। वकील ने उसे जाने दिया। शहजादी खैमे से निकल आज भी शहजादी में जितनी हिम्मत थी निकल भागी और जहाँ तक
उसके कदमों ने साथ दिया भागी और आखिरकार थक हार कर एक बड़ी झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गई। वकील ने जब देखा कि शहजादी अभी तक नहीं आई तो उसके पीछे निकल पड़ा। इधर उधर भाग दौड़ कर उसे बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। अब उसे डर लगने लगा कि बच्चा भी जान से गया और शहजादी भी भाग निकली। अगर किसी ने बादशाह को खबर दी तो वो मुझे खोलते तेल में तल देगा। वकील जल्दी जल्दी वापस आया, मरे हुए बच्चे को उठाकर कहीं दूर दफन किया और अपने खैमे में जाकर सोता बन गया। जब सुबह को फटी तो शहजादी आहिस्ता आहिस्ता अपने खैमे में दाखिल हो गई। देखा कि दूसरे बेटे की लाश भी नहीं है। समझ गए कि बदकिरदार वकील ने इसे ठिकाने लगा दी है। बेचारी किस पर इतबार करती, इसलिए चुप रही। लश्कर फिर शहजादी के बाप बादशाह के मलक की तरफ रवाना हो गया। आज शहजादी अकेली एक बेटे के साथ गमों का इंबार लिए ऊंट पर सवार थी। जब तीसरी मंजिल पर पड़ाव डाला गया तो आज वजीर और वकील ने अपने खैमे शहजादी के खैमे से बहुत दूर खड़ा करवा दिए थे। वो शर्मिंदा शहजादी के सामने आ ही नहीं रहे थे। हैरान और परेशान थे कि जब बादशाह को पता चलेगा तो उसे क्या जवाब देंगे। आज जैसे शहजादी का खैमा खड़ा कर दिया गया तो देखा कि काजी साहब अपना खैमा इस खैमे के सामने इस्तेदा करवा रहे हैं। शहजादी ने इससे भी बथेरा समझाने की कोशिश की लेकिन काजी बजात भी टलने वालों में से नहीं था। आज की रात भी शहजादी के लिए क़यामत की रात थी। वो समझ चुकी थी कि काजी बजात भी इन दोनों से किसी तौर कम। आज रात तो शहजादी बिल्कुल भी नहीं सोई बैठी रही। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो देखा कि काजी भी खरामा खैमे में दाखिल हो रहा है। शहजादी ने इससे भी बथेरा समझाने की कोशिश, बहुत मिन्नत समाजत की, खुदा रसूल के वास्ते दिए, यहाँ तक कह दिया कि अगर वजीर वकील जाहल थे लेकिन तुम तो आलम फाजिल इंसान, लोगों को इंसाफ फराहम करते हो, तुम्हें ऐसी हरकत जेब भी नहीं देती। लेकिन काजी भी पूरी तरह शैतान बन चुका था। इस पे इन बातों मिन्नत समाजतों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादी ने देखा कि ये भी नहीं टलने वाला तो इस ख्याल से कि शायद उसके दिल में रहम पैदा हो जाए, अपने तीसरे सबसे छोटे बेटे को उसके सामने कर दिया, उसकी दहाई दी, वास्ते दिए। लेकिन काजी तो इन दोनों से भी दो हाथ आगे था। काजी बदबख्त को भी रहम न आया और मासूम बच्चे का सर कलम कर दिया। शहजादी ने इसे भी यही कहा कि मैं पाको साफ हूँ, वजू से हूँ, मुझे मौका दो ताकि अपना वजू तोड़ दूँ, इसके बाद जो तुम चाहो करो। काजी ने भी इसे जाने दिया। जैसे ही शहजादी बाहर निकली, जिधर मुंह उठा भाग निकली। भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। इसके दिल में धुआं भर गया। अपने मासूम बच्चे याद आए। इसका दिल खून के आंसू रो रहा था और वो सोच रही थी कि अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे किधर हैं, इसे क्या जवाब दूं। इससे बेहतर है कि खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। ये फैसला करके इसने दरिया में छलांग लगा दी, पर शोर दरिया उसे चक्कर देकर कहीं का कहीं पहुंचा के दूसरी तरफ निकाल ले गया। दूसरी तरफ 6 फकीर जो के भाई थे अपने कपड़े दरिया पर धोने के लाए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो पकड़कर बाहर निकाल लाए। अब शहजादी के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसके होशोहवास जवाब दे गया कि कहाँ वो तीनों बज़ात और बदकिरदार कि इनसे अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली तो इन 6 नंग तड़ंग फकीरों के हत्थे चढ़ गई। फकीरों में से हर एक यही कह रहा था कि ये मेरी है। आखिर सलाह यही ठहरी कि इसे बाप के पास ले जाएंगे, वो जिसका कही ये औरत उसी की है। वो शहजादी को अपने बाप के पास ले गए। इनका बाप एक ज़ीरक और अक्लमंद इंसान था। देखते ही समझ गया कि ये किसी शहनशाह घराने की औरत है। मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं। इसी वजह से उसने अपने बेटों को समझाया, ऐ मेरे बेटे, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसे अपना बहन बना लो। तुम 6 भाई और 7वीं तुम्हारी ये बहन, इसकी खूब निगहदाश्त करो, इसकी बरकत से तुम सब सर खुरू हो गए। बाप के फैसले से फकीर बहुत खुश हो गए और अपने से बढ़कर शहजादी का ख्याल रखने लगे। इनको छोड़ो जब बादशाह चौथे दिन आकर लश्कर से मिला तो देखा वजीर, वकील और काजी इससे कतरा रहे थे। इसके सामने शर्मसार से थे। पूछा, मेरी बीवी बच्चे कहाँ है? तीनों ने यक ज़ुबान होकर कहा, मलका तो एक डायन थी, तीनों बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। बादशाह हैरान और परेशान हो गया कि ये क्या बात होगी। वह इन तीनों पर शक सा गया लेकिन कहा कि मैं बाद में देखते हैं, अभी जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ जाके फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बादशाह अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाके अपने जालिम ससुर बादशाह को देखूं और इससे पूछूं कि इससे क्यों बेटियों से इतनी नफरत है। इसके जुल्म सतम की वजह से उसकी बेटी डायन बन गई और अपने बच्चों तक को खा गई। चलते चलते उन्होंने एक बड़े दरिया को पुल के जरिए पार किया और अपने मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इधर शहजादी फकीरों की बहन बनकर रहने लगी। इससे इधर उधर से सुनगुन मिल गई और वो समझ गई कि अपने बाप बादशाह के मलक में पहुंच गई है। उसे पता था कि उसके बाप को किस्सा सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने फकीर भाइयों से कहा कि जाकर बादशाह को बता दो कि हमारी
हमारी बहन एक किस्सा गो है, क्या वो इसे शाही किस्सा गो के तौर पर मुलाजमत देगा या नहीं। फकीरों ने बादशाह के दरबार तक रसाई हासिल करके इसको ये गोशो गुजार दिया कि हमारी एक बहन है जो बहुत अच्छी किस्सा गो है, अगर इसे पसंद हो तो इसे किस्सा सुनवाने के लिए लेकर लाएं। बादशाह ने इन्हें इजाज़त दे दी और कहा कि अगर इसके किस्से पसंद आए तो वो इसे शाही किस्सा गो रख देंगे। शाम को फकीर शहजादी को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। शहजादी नकाब में थी और दरमियान में भी पर्दा हायल था। इसने बादशाह के लिए एक किस्सा सुनाया जो बादशाह को बहुत पसंद आया। इसने खुश होकर फकीरों को बहुत सा इनाम इकराम दिया। फकीर इनाम इकराम लेकर बहन के हमरा वापस घर आए। वो पहले भीख मांगने से बेजार थे, इसलिए बहुत खुश थे। शहजादी हर रात आकर बादशाह को एक नया किस्सा सुनाती। बादशाह से दाव और इनाम इकराम पाकर वापस अपने फकीर भाइयों के साथ घर लौट आती। फकीरों की जान भी भीख मांगने से छूट गई। एक रात जब वो आई तो देखा क्या तो उसका शौहर, बादशाह, वजीर, वकील, काजी वगैरह भी इसके बाप बादशाह के साथ बैठे हुए हैं। शहजादी ने सोचा आज तो किस्सा मजा करेगा। शहजादी आज भी हर रोज की तरह नकाब में थी। पर्दे के दूसरी तरफ आकर अपनी जगह पर बैठ गई और अपने बाप बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आज मैं एक बहुत खास दास्तान सुनाने वाली हूँ। अगर किसी को कोई हाजत दरपेश है तो अभी से उठकर रफा हाजत पूरी करे। दास्तान के दरमियान किसी को उठने की इजाजत नहीं है। अगर कोई उठ गया तो मैं दास्तान सुनाना बंद कर दूँ और आइंदा के लिए मैं कोई किस्सा सुनाने नहीं आऊंगी। बादशाह ने सबको हुक्म दिया। सब ने इकरार किया कि वो दास्तान के दरमियान नहीं उठेंगे। शहजादी ने दास्तान सुनाना शुरू की। एक जालिम बादशाह था, उसे अपने घर में बेटी की पैदाइश पसंद नहीं थी। जब इसके घर में लड़की पैदा हुई तो अपने बीवी को उसे मारने का हुक्म दिया। इसके बीवी ने दाई के जरिए अपनी बेटी को बचाकर इसकी परवरिश की। एक दिन इस लड़की पर बादशाह की नजर पड़ी जो अब जवान हो गई थी। बादशाह ने इस बूढ़ी दाई के घर अपने लिए रिश्ता भेजा, लेकिन दाई ने तस्लीम नहीं किया। बादशाह ने इस पर जुल्म सितम डाय तब दाई ने बताया कि वो लड़की इस बादशाह की बेटी है। बादशाह हैरान हुआ कि ये तो मेरा किस्सा है जो ये खतून सुना रही है। बादशाह ने बहुत से हीरे जौहरात शहजादी की तरफ फेंक कर कहा कि देखना, दास्तान को बंद मत करना। शहजादी ने हीरे जौहरात फकीरों की तरफ फेंक दिए जो उसे पाकर बहुत खुश हुए। शहजादी ने दास्तान जारी रखते हुए कहा, बादशाह ने बेटी को अपने बेटे के हवाले करके कहा कि इसे जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और उसकी आंखें और खून निकाल कर इसे दिखा दे। लेकिन भाई को अपने हाथों से बहन को कत्ल करना गवारा न हुआ और अपनी बहन को जंगल में छोड़कर वापस आया। जंगल में वो लड़की बहुत अरसा रुलती रही, यहाँ तक कि उसके जिस्म पर इसका लिबास तार तार होकर गिर गया और वो जंगल बेआबान में बेलिबास वक्त गुजारने लगी। बादशाह उमर रफ्ता के बायस अब बूढ़ा हो गया था। उससे पहले ही से अपनी बेटी के साथ किए गए जुल्म सितम से बहुत पेशमानी और पछतावा था। जब उसे दास्तान के जरिए अपनी बेटी के मतलब पता चला, इसकी आंखों में आंसू उमड़े। शहजादे को भी एहसास हुआ कि ये तो मेरी बहन का किस्सा है। उसने बेचैन होकर कुछ और हीरे जौहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि दास्तान जारी रखना, रोकना मत। फकीर भाइयों को तो इतने इनामात देकर बादशाह खिल उठी। शहजादी ने कहा, एक दिन एक बादशाह का गुजर इसी जंगल से हुआ। लड़की को देखा और उसे अपने साथ अपने मुल्क ले जाकर इससे ब्याह रचाया। शहजादी का शौहर बादशाह, जो पहले बड़ी दिलचस्पी और इन हमाक से दास्तान सुन रहा था, चौंक पड़ा कि ये तो मेरा और मेरी बीवी का किस्सा लग रहा है। उसने भी बहुत से हीरे जौहरात निकाल कर शहजादी की तरफ फेंक दिया और कहा कि देखना, दास्तान आखिर तक सुनाना, मुझे इस दास्तान को पूरा सुनना है। फकीर भाइयों के तो पैर खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। शहजादी ने दास्तान जारी रखी। बादशाह ने इस लड़की से शादी की। इससे इसे 3 बेटे हुए। एक दिन बादशाह ने उसे इनके बेटों के साथ अपने वजीर, वकील और काजी के हमरा इसके ससुराल रवाना किया। अब वजीर, वकील और काजी के औसान खता हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये तो हमारा किस्सा है। बादशाह ने कुछ और हीरे जौहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए। फकीर भाइयों की बातें खुशी से खिली जा रही थीं। पहली मंजिल पर बादशाह का वजीर नापाक इरादे से इसकी तरफ बढ़ा और इसे बदी के लिए तंग किया। इसके बड़े बेटे का सर तन से जुदा किया, लेकिन लड़की को किसी तरह अपनी इज्जत बचा के भाग निकली। वजीर ममनाया, मुझे बहुत जोर का पेशाब लगा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बादशाह ने उसे डांट दिया, खामोशी से बैठ बदजात कहीं के, इसी वक्त तुम्हें क्यों पेशाब आ रहा है। वजीर चुप करके बैठ गया। दूसरों मंजिल पर इस तरह वकील भी अपने नापाक इरादों के साथ लड़की को बदी के लिए तंग किया और अपने नापाक अज़ाम पूरे करने के लिए इसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा करने से भी बाज ना आया। पर पाक दामन लड़की ने यहाँ भी अपनी इज्जत बचाई और भागकर कहीं छुप गई। अब वकील हकलाया, बादशाह सलामत, मुझे जोर की हाजत पेश आई है, बस मैं यूँ गया और यूँ आया। बादशाह ने वकील पर आंखें निकाली, बस कर बजात और खामोशी से बैठ। जब हकीकत ज़ाहिर हो रही है
तो तुम लोगों को हाजत पेश आ रही है। वकील भी खामोशी से बैठ गया। तीसरी मंजिल पर काजी भी अल्लाह रसूल को फूल कर बदी के लिए लड़की को तंग करने लगा और इस जालिम ने इसके तीसरे बेटे का सर कलम किया। लड़की ने फिर अपनी इज्जत बचाई और भागकर एक बड़े दरिया में कूद गई। काजी ने भी कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने इसे भी डांट कर चुप करा दिया। दरिया ने लड़की को कहीं दूर ले जाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जहां से 6 फकीरों ने देखा और उसे दरिया से निकाला। अब फकीर भाइयों की गुग्गी बंद हो गई कि हो ना हो ये हमारी बहन का किस्सा है। वो भी चुप साध कर बैठ गए। फकीर इस लड़की को अपने बाप के पास ले गए। इसके अक्लमंद बाप ने इस लड़की को इन 6 भाइयों की बहन बना दिया। उसके बाप बादशाह की आंखों से जल जल आंसू बह रहे थे। दोनों बादशाहों ने हीरे जवाहरात के ढेर इनके सामने लगा दिए कि खुदार दास्तान को जारी रखो। लड़के को किसी तरह पता चला कि ये इसके बाप बादशाह का मलक है। इसे पता था कि इसके बाप को दास्तान सुनने का बहुत शौक है। इसने अपने भाइयों के जरिए बादशाह को कहलवा भेजा कि अगर इसे मंजूर हो तो आके इसे दास्तान सुनाए। यहाँ पहुंचकर इसके बाप बादशाह का दिल चूर चूर हो गया। वो एक फरियाद मारकर उठ खड़ा हो गया। शहजादी ने भी अपने चेहरे से नकाब उठा दी तो उसके शोहर बादशाह ने भी शहजादी को पहचान लिया। बाप बेटी को और शोहर बीवी को पाकर बेतरह खुश हो गया। दोनों ने वजीर, वकील और काजी को पकड़ा। उनसे कहा कि बोल कैसी सजा चाहिए, 4 चिड़ी, चाबक या 4 बटोर। ये बरहावी जुबान में 2 सख्त सजाओं के नाम है। उन्होंने कहा कि 4 बटोर। बादशाह ने 12 घोड़े मंगवाए। हर एक के हाथ पैर 4 घोड़ों से 4 इतराफ में बांध कर इन्हें 4 मुखालिफ सिमत में दौड़ा दिया, जिनसे उनके जिस्म टुकड़ों में बट गए। इसी तरह इन बज़ातों को इनके किए की सजा मिल गई और शहजादी का बाप अपनी बेटी और इसका शोहर अपनी बीवी को पाकर बहुत खुश हुए और हंसी खुशी से रहने लगे।